हाँ, फिर से स्वागत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, है ना? आप लोग बोलोगे यार गुरुजी हर बार लंबा खींच देते हैं, हर बार लंबा खींच देते हैं। पर ये लंबा नहीं है बच्चों। जब हम ऑफलाइन पढ़ेंगे तो 1 घंटे का लेक्चर होता है बच्चों। ठीक है? फिर भी मेरा लेक्चर हाँ वैसे घंटा चला ही जाता है ना। कोई बात नहीं, ये वाला पोर्शन जो हम छोटे में कंक्लूड कर लेंगे थोड़े से टाइम में। ओके, ये जो डिफरेंट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स है बच्चों, कई बार आपको एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि डिस्कस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ यंग स्पोरोगोनियम और डेवलपिंग स्पोरोगोनियम इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो एक पहला बता दिया था मैंने, कैलिप्ट्रा, है ना? तो कैलिप्ट्रा क्या होता है बच्चों? दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ वेंटर वॉल। ये याद रखना बच्चों। कैलिप्ट्रा लगभग बहुतों में होता है। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में नहीं होगा, जैसे फ्यूनेरिया में है कैलिप्ट्रा प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ द केसेस में कैलिप्ट्रा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो बाकी हल्का सा समराइज कर लेते हैं। इनवोल्यूकर, इनवोल्यूकर कैसे बनता है बच्चों? बाय involucre is formed by the gametophytic tissue. Gametophytic tissue around the developing sporogonium, for example, in Anthoceros, it makes a collar-like structure to protect that developing sporogonium and especially the meristematic portion. Okay? Whereas what is perigynium? It is the extension of the gametophytic tissue around calyptra, अराउंड कैलिप्ट्रा बच्चों, कैलिप्ट्रा के अलावा। ठीक है, अराउंड कैलिप्ट्रा एंड इट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग स्पोरोगोनियम, whereas pericytium is also the extension of a gametophytic tissue and it protects the entire row of developing sporogonium or sporogonia. For example, in Markensia, whereas a perianth is formed uh, by fusion of pericytial bracts. Pericytial bracts, and they make a cup-like structure, and for example, found in Porella. And lastly, the pericytial bracts. Pericytial bracts are compactly, spirally, and compactly arranged leaf-like structures present at a top of a archegonial branch or female branch called female head, and they make a cup-like structure again. However, pericytial bracts do not fuse, but somehow they make a cup-like structure, and in that cup-like structure they can retain water, so they help in fertilization, they help in opening of cover cells of archegonium, they help in disintegration of neck canal cells and venter canal cell in archegonium of funaria, and they help in swimming of enterozoids towards archegonial neck, and they help in uh, transfer of enterozoids passing through archegonial neck up to ventral region where fertilization occurs, and also they help to protect the younger sporophytic structure called sporogonium in case of funaria, in case of polytrichum, in case of pogonatum, and at other bryophytic members where the gametophytic thallus is an upright leafy axis called gametophore. So this is it बच्चों about these protective structures. However, ये मैंने डिस्कस पहले कर लिया था. However, on maturity, the sporogonium comes out of these protective structures. Comes out. Why? To desiccate. And how? In majority of the cases where CETA is present, CETA elongates. As a result, the capsular region comes out of these protective structures and comes out in direct contact with the outer environment. Thus, they desiccate and dehisce and thus liberate the spores. So this is it, बच्चों. Moving to next slide. Now, अब आएगा दोबारा से इंपॉर्टेंट है.
ठीक है बच्चों। कैप्सुलर पोर्शन जो होता है स्पोरोगोनियम का, दैट इज मेनली कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। फिर से एक बारी मैं सॉरी मांगता हूं, पिछले किसी लेक्चर में मैंने शायद थोड़ा सा गलत इंफॉर्मेशन दे दिया था। मैंने क्या कहा था कि जो फाइनल फर्टाइल सेल जनरेशन जो आता है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर मदर सेल्स, इट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। स्पोर मदर सेल्स विल प्रोड्यूस स्पोर्स ओनली। व्हाट हैपेंस, एक जब ये कैप्सूल डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, पहले अनडिफरेंशिएटेड मास के रूप में डेवलप होता है, फिर धीरे 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 इसका वाल और स्टीराइल जैकेट इन द फॉर्म ऑफ वाल, सिंगल लेयर्ड और मल्टी लेयर्ड डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज, डिफरेंशिएट होता है, और सेंट्रल रीजन डिफरेंशिएट होता है जहां पर कि हमारे स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड लास्ट सेल जनरेशन आता है उसको स्पोरोजीनस मास बोलते हैं बच्चों, स्पोरोजीनस मास। कुछ ब्रायोफाइट्स में ये स्पोरोजीनस मास जो है एक ही तरह के सेल्स में डिफरेंशिएट होता है, उनको बोलते हैं हम स्पोर मदर सेल्स। और ये स्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। ये याद रखना बच्चों, कुछ ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोजीनस मास है वो सिर्फ स्पोर मदर सेल्स और स्पोर्स बनाएगा, वेयरएज कुछ ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोजीनस मास है ये दो तरह के सेल्स में डिफरेंशिएट होता है। एक फर्टाइल वंस है जिनको हम स्पोर मदर सेल्स बोलते हैं, दूसरे स्टीराइल वंस है जिनको हम या तो इलेटर मदर सेल्स या स्यूडो इलेटर मदर सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं। ये मियोसिस नहीं करते हैं, ये जो स्टीराइल सेल्स हैं ये मियोसिस नहीं करते हैं और डेवलप हो जाते हैं कुछ हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स में जिनका नाम होता है इलेटर्स और स्यूडो इलेटर्स। जो ये इलेटर्स हैं हम लोग मार्केंशिया में पढ़ेंगे। स्यूडो इलेटर्स कहीं एंथोसिरोस में पाए जाते हैं, और चूंकि एंथोसिरोस हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। मार्केंशिया में हम डिटेल में करेंगे स्पोर्स फॉर्मेशन एंड इलेटर्स फॉर्मेशन। और क्योंकि इलेटर मदर सेल्स मियोसिस नहीं करते हैं बच्चों, जो इलेटर्स बनते हैं ये हमेशा डिप्लॉइड होंगे। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना है, ठीक है। अब मेन बात करते हैं रिगार्डिंग द स्पोर्स। मैंने आप लोगों को बताया था स्पोर्स दो तरह के बनते हैं, एक हमारे पास होमोस्पोर्स हैं, होमोस्पोर्स, और एक है हमारे पास फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल, और दूसरे शब्दों में हम इनको बोल सकते हैं फंक्शनल हीटेरोस्पोर्स और फिजियोलॉजिकल हीटेरोस्पोर्स। ये किस लिए बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ये स्पोर्स देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन बिहेव डिफरेंटली करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो दो स्पोर्स होते हैं वो मेल एक्ट करते हैं और दो जो है फीमेल एक्ट करते हैं। अगेन फिर पूछता हूं क्यों? क्योंकि जो स्पोर मदर सेल है दिस अंडरगोज मियोसिस and it produces four spores, and these four spores may either be homospores or these may either be physiological heterospores. Means in physiological heterosporous case two spores will be male ones and two spores will be female ones. So the male spores will germinate and they will give rise to male gametophytic thallus, and female spores will germinate and they will produce a female gametophytic thallus, or in other words unisexual thalli or dioecious gametophytic thalli बनाएंगे। किस केस में? फिजियोलॉजिकल हिटेरोस्पोरी के केस में। फॉर एग्जांपल वी हैव मार्केंशिया, वेयर एज इन केस होमोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, फॉर एग्जांपल इन फ्यूनेरिया, तो at this level there is no male no female. So what happens, homospores will germinate and they will produce bisexual or
मोनोइशियस गेमिटोफिटिक थैलस। तो ये बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, अगेन फिर याद रखना है। स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सुलर रीजन ऑफ स्पोरोगोनियम मे आइदर बी होमोस्पोर और फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल हेटेरोस्पोर्स। इसका क्या मतलब हुआ? होमोस्पोर्स कैसे बनाएंगे? बाइसेक्सुअल थैलाई, वेरेज फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल हेटेरोस्पोर्स जो होंगे बच्चों, ये क्या बनाएंगे? डायोशियस और यूनिसेक्सुअल थैलाई, जिनमें एक गेमिटोफाइट के ऊपर सिर्फ एक जेंडर मौजूद होगा, या तो वो मेल मौजूद होगा या फीमेल मौजूद होगा। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, अब एक हल्का सा ये एग्जांपल दिया था मैंने, है ना, होमोस्पोरस के केस में जैसे फ्यूनेरिया है, और फिजियोलॉजिकल हेटेरोस्पोरस के केस में मार्केंशिया है। जहां कहीं पर भी बच्चों, जहां कर भी हमको डायोशियस थैलाई नजर आ रहे हैं ब्रायोफाइट्स में, वहां समझ लो आपको कि जो स्पोर्स बन रहे हैं वो फिजियोलॉजिकल हेटेरोस्पोर्स हैं। और जहां कहीं पर भी मार्केंशिया ब्रायोफाइट्स के अंदर मोनोशियस थैलस नजर आ रहा है, और बाइसेक्सुअल थैलस नजर आ रहा है, जहां पर आर्चिगोनियम और एंथीरिडियम जो है एक ही थैलस के ऊपर बनते हैं। तो हमको समझ लेना चाहिए कि ये गेमिटोफाइट जो है होमोस्पोरस गेमिटोफाइट है। एक चीज में शायद भूल गया था, ठीक है, जो स्पोर जर्मिनेशन है बच्चों, स्पोर जर्मिनेशन ये आप लोग ऐड कर लो, मैंने स्लाइड में नहीं बनाया, मुझे अभी याद आ गया, इज ऑलवेज एक्सोस्पोरिक। स्पोर जर्मिनेशन ये लिख लो, स्पोर जर्मिनेशन इन ब्रायोफाइट्स इज ऑलवेज एक्सोस्पोरिक। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों जब स्पोर जर्मिनेट करता है, ठीक है, जो गेमिटोफाइट बनाता है, गेमिटोफाइट स्पोर के बाहर आके बनता है। अब आपको लगेगा ये फिर क्या पिक्यूलियर सा फीचर बता दिया आप लोगों ने, ठीक है, आपने ये जब हम टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे बच्चों वहां पर होगा। टेरिडोफाइट्स में एक्सोस्पोरिक गेमिटोफिटिक डेवलपमेंट भी होता है और एंडोस्पोरिक गेमिटोफिटिक डेवलपमेंट भी होता है। एंडोस्पोरिक गेमिटोफिटिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि स्पोर जर्मिनेट करता है, क्या बनाता है? गेमिटोफाइट ही बनाएगा, ठीक है। लेकिन जो एंडोस्पोरिक टाइप्स है उनमें क्या होता है, जो गेमिटोफाइट है उसका ज्यादातर डेवलपमेंट जो है विद इन स्पोर वॉल हो जाता है। जब वो स्पोर ब्रेक करता है, जब गेमिटोफाइट बाहर आ जाता है स्पोर के वॉल के बाहर, स्पोर के बाहर, तब तक उसका मेजर पोर्शन गेमिटोफाइट का डेवलप हो चुका होता है। तो उन केस में स्पोर के जर्मिनेशन को हम बोलते हैं एंडोस्पोरिक। लेकिन ब्रायोफाइट्स में एंडोस्पोरिक कंडीशन कहीं नजर नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। यहां पर जो डेवलपमेंट होगा गेमिटोफाइट का या स्पोर का जो जर्मिनेशन होगा वो एक्सोस्पोरिक ही होगा। मींस व्हेन स्पोर जर्मिनेट्स its intine comes out in the form of a tube and this will form then the gametophyte of any type, चाहे वो लीफी एक्सिस हो चाहे वो हेपेटिक स्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो इस तरह के स्पोर जर्मिनेशन को हम बोलते हैं एक्सोस्पोरिक स्पोर जर्मिनेशन। उम्मीद करता हूं बच्चों ये लेक्चर पूरा आप आज के दिन देख लोगे, ताकि हम कल जो है एक नया लेक्चर शुरू कर पाए। रोज का लेक्चर को रोज अटेंड कर लिया करो बच्चों, ठीक है, क्योंकि 1 2 4 दिन छोड़ दोगे तो आपके पास बहुत ढेर इकट्ठे हो जाएगा और फिर आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा, है ना, मुश्किल हो जाएगा बच्चों। इसलिए रोज का लेक्चर रोज पढ़ लिया करो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर कल मिलेंगे, कल टुमारो इज संडे, टुमारो इज रेस्ट डे, मंडे को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक खुश रहिए मेरे प्यारे बच्चों, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित बने रहिए, ठीक है। खुद को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, एसओपी पूरा फॉलो करें और समाज को भी सुरक्षित रखें। जय हिंद बच्चों।